جتنا زیادہ ڈسکرمنیشن ہندوؤں کے خلاف ہوا ہے، دھرما کے خلاف ہوا ہے، جس نے دنیا کو جینا سکھایا ہے، دنیا کو زندگی کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، تو اس پہ مجھے بہت زیادہ ریئیکشن کا کرنا سامنا پڑا. کچھ لوگ بولتے تھے کہ بھئی میں تو پتہ نہیں کالی داسی کے ساتھ میں آتی تھی نا کہ آپ جادو کرتے ہو. اسلام دھرم کے نام پہ یہ ملک نہیں چلا رہے. جو ہمارا تقدیر ہے، ہماری جو ڈیسٹنی ہے، وہ اس میں ہے کہ جس طرح یورپین یونین ہے، اس طرح بھارتی یونین بننے جا رہا ہے. کشمیر اور پنجاب تو انڈیا کا حصہ ہے نا، وہ دونوں آپ کے پاس آئیں گے. دوستوں، میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص شو اٹس ڈیبیٹیبل میں. اسلام میں کٹر پنتھ کے خلاف میں ہمیشہ آواز اٹھاتی رہتی ہوں، اور کیونکہ کٹر پنتھ کا خمیازہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ مہیلاؤں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. میرے نظریے سے اپنے شروعاتی دور میں اسلام سے زیادہ پروگریسو کوئی دھرم نہیں رہا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریتیاں یا کچھ اس طرح کی رسمی تھی، ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی. پیغمبر صاحب کے انتقال کے بعد مشکلیں آتی گئیں اور کٹر پنتھی مولاناؤں نے اپنی دکانیں شروع کر دی، جن کی پابندیوں کی وجہ سے کئی مسلم مہیلاؤں کو اپنا راستہ الگ تلاشنا کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ملکوں میں مہیلائیں اب کٹر پنتھ کے ہیں جو اپنا دھرم یا اس طرح کی اپنی جو سوچ ہے وہ بھی بدل رہی ہے، دوسرے دھرم کو اختیار کر رہی ہے. آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور اسی ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر فوزیہ رؤف، ان کو آپ نے کئی ساری چرچاؤں میں دیکھا ہوگا، جنہوں نے ہندو دھرم سویکار کر لیا. ان کا نیا نام ہے سرسوتی داسی. سواگت ہے آپ کا بہت بہت. نمسکار فوزیہ جی. فوزیہ رؤف عرف سرسوتی داسی. تھینک یو سو مچ. میں اتنے عرصے کے بعد آئی ہوں یوٹیوب پہ، اور سب دوستوں کو صبح میں ابھی بھی ہندی سیکھ رہی ہوں. سپربھات مینس گڈ مارننگ. گڈ مارننگ، ہاں سپربھات، گڈ مارننگ. اور سو ہیپی کہ میں امبر کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑ رہی ہوں. اور میں امید کرتی ہوں، تھینک یو سو مچ امبر فار برنگنگ می ہیئر، کیونکہ مجھے تھا کہ میں آ جاؤں پھر سے. آئی مس یو آل، آئی مس مائی یوٹیوب فالوورز، آئی مس دا یوٹیوبرز. ایک شغل میلہ لگا ہوتا تھا ہمیشہ، آپ لوگ بالکل میرے فیملی بن گئے تھے. آپ لوگوں نے مجھ تک رسائی کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے، جو بھی افغانستان میں ہو رہا تھا، ابھی تو جو دنیا میں ہو رہا ہے. We are in it together and thank you so much for giving me invite. اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آ کے جڑ کے خوش محسوس کر رہی ہوں. باہر کی آمد روز کی آپ سب لوگوں کو مبارک. ہولی کی بہت زیادہ شبھ کامنائیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اور مزید آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویورز ہمیشہ ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو ہماری عادت ہو جاتی ہے. بالکل فیملی ہوتے ہیں، روز ایک دوسرے کے وچار اور ایک دوسرے کا پریم ایک دوسرے تک پہنچتا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت پروتساہن اور ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے. تو ڈاکٹر فوزیہ، آپ ایک افغان پختون ہیں. آپ نے لاہور میڈیکل کالج سے پڑھائی کی اور اب امریکہ میں رہتی ہیں. پاکستان میں رہ کر آپ نے اسلام کو کیسے چھوڑا، اور اس کے پیچھے کی کیا سب سے بڑی وجہ رہی کہ آپ کو دھرم بدلنا پڑا اور اسلام چھوڑنا پڑا؟ تھینک یو سو مچ. جس طرح مطلب آپ نے یہی کہا کہ جو اسلام پروگریسو تھا، اگر یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جس زمانے میں یورپ تاریکیوں میں تھا، چائنا اور اسلام نے ایکسپینشن کیے، کالونائز کیا ہے، اس وقت ان کے سائے میں بہت سارے مطلب فلاسفی، آرٹ، ایجوکیشن وہ پروان چڑھے ہیں. تو یہ بات بالکل فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے بہت صحیح کہا. لیکن ہمارے لیے پھر اسلام کے ساتھ جب اس کا زوال آتا گیا، جس میں کٹر پن آتا گیا، پھر اسلام کو پین سے لے کے مولوی نے کہا، پھر وہ
उसमें साइंटिफिक वेज थिंकिंग, क्योंकि देखो हमारा किसी के मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता. मजहब ये इंसान का, जो हम जिस जमाने में रहते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस. यू नो, आई मे नॉट बी लाइक फॉर कि मैं अगर अपने बाहर जाके मैं चीखती रहूं कि ओ मैं सनातनी हूँ, मैंने धर्म स्वीकार किया है. धर्म या कोई भी मजहब तभी वैल्यू रखता है जब आप उसको अपने लिए पर्सनल स्पिरिचुअल गेन का सहारा बनाते हो. बट व्हेन इट बिकम्स पॉलिटिकल, व्हेन इट्स बिकम लाइक आपकी जिंदगी के बेसिक राइट्स आपसे ले ले. मतलब आजकल अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, मैंने ये बात की है कि जो अफगानिस्तान में बोलते हैं ना कि दैट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, तो इसमें जो एक नया एम्पायर दफन होने जा रहा है वो इस्लाम है. क्योंकि तालिबान, उसके पीछे कि तालिबान जो इस्लाम का रूप दुनिया को दिखा रहा है, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करे, ना इस मजहब को ना तालिबानों को. तो लेकिन जो इस्लाम का रूप मसलन अब सऊदी अरेबिया दिखा रहा है, वहां पे खवातीन रेड कारपेट पे वॉक कर रही है, 3-4 से वो गाड़ियां चला रही है, वो एजुकेशन ले रही है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कल को अगर कोई इंडिया से कोई हिंदू प्रोफेसर जाता है या अमेरिका से जाते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो दे आर ओपन टू लर्न. And they're open to learn what they wanted to know, not the religion they practice. हमारे ऊपर उल्टा हुआ है, हमारे ऊपर वो मजहब थोपा गया जो हमें था. मतलब I was praying, I was a Muslim, लेकिन that wasn't enough. And मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, और जिस तरह आप पढ़ाई कर देते हो ना, ये हमारे सोसाइटी में बोलते हैं ना कि फिर लड़कियों को पढ़ा के उनका दिमाग खराब हो जाता है. फिर मेरा भी हो गया खराब, क्योंकि एक पढ़ने से मैंने फिर भगवत गीता पढ़ी, क्योंकि मैंने खुद कुरान हिफ्ज किया था, बाइबल पढ़ा, तोरा पढ़ा, और हिस्ट्री पढ़ी, फिर अपने अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी. और उसमें अफगानिस्तान में हमें ये सिखाया गया है ना that we really love India. We have this obsession, crazy, mad love with India. हर चीज से कि ओ इंडियन है, इंडियन क्लोथ. कल मैं जान अब्राहम की एक वीडियो भी देख रही थी जब वो काबुल एक्सप्रेस शूट कर रहा था. मतलब if as an Indian you go to Afghanistan, you will be shocked कि why would there so much traditional way of life? What is that love they have for India and Indians? That's the dharma which connect us date back, क्योंकि हम अपनी authentic history पढ़ाते हैं. How we fought Mughal, Safavid, Umayyad, how we laid the foundation of Afghanistan, किस तरह हम पे जुल्म हुआ है, गौरी किस तरह आया है. So we always values our ancestors. और फिर मैंने लगा अच्छा हमारे ancestors सारे हिंदू थे, फिर ज़ोरास्ट्रियन हो गए, फिर बुद्धिस्ट हो गए. And that's how मेरा भी जो था ना धर्म में घर वापसी का यही था, because I love doing what I'm doing. मुझे अभी मैं वो शिफ्ट तंत्रम वो सीख रही हूँ, but it's very difficult. इसीलिए मैं खुद को बहुत कमी महसूस करती हूँ कि as a child you learn more, you're more flexible. वो डांस करना शेफ का, उनको लाना अपने gestures को, so that's very especially yoga, it's very ख़वातीनों की खूबसूरती के लिए अच्छा है. स्पिरिचुअली फिजिकल खूबसूरत योगा भी. और जो आप अगर आप दिन में 5 मरतबा नमाज की बजाय जो शिव तांडव होता है ना, शिवा तांडव, हाँ, वो जो आप कर लेते हो ना, उसमें जब आप आ जाते हैं और वो डिफरेंट मूव्स करते हैं, और सो वो हर एक both physically and mentally spiritual growth और physical growth के लिए being in a health industry or being a science student, तो वो anatomy physiology पढ़ के आपको लगता है कि अच्छा how good it is, like how कितना perfect है. उससे आगे perfections कुछ है नहीं दुनिया में. जो ways of life धर्मा के हैं, क्लीननेस का आप देखें, आप जो है ना एक सोशल स्ट्रक्चर का उनको देखें, यू कैन टॉक, आप इस पे बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये मौजे से कम नहीं है कि जो परफेक्शन हमारे पुरखों ने अचीव किया है, और उसको अगर आप आज अमली तौर पे गुजारो, तो आपको लगेगा कि यू आर मिसिंग ह्यूज पार्ट. calmness रहना, ना बोलने का, वो एक होता है ना बोलने का रोजा रखना, and that's so good for your vocal cords. यही मैं भी कर रही थी, लेकिन जी मौन व्रत इस तरह ये सारे जो हमारे
एग्जैक्टली जो हमारे रिचुअल्स होते हैं सनातन धर्म के, दे आर स्पिरिचुअली एंड फिजिकली इनरिचिंग यू, और ये आपको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं. लाइक यू वर्शिप एवरी लिविंग बीइंग. जो आप खाते जी हो, यू सी दैट कि आप क्या खा रहे हो, और जो हाँ, जो आपको खिला रहा है इसका. हुँ। जी. आपने जब ये मज़हब छोड़ने का फ़ैसला लिया तो आप पे किसी तरह का दबाव या धमकियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। कैसा जब आपने ये फ़ैसला किया और आपने अपने फ़ैसले के बारे में आपके आस-पास या परिवार के लोगों को बताया तो किस तरह का आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ा? या हमारे जो इस्लाम ने जो डैमेज किया है टू द ह्यूमैनिटी, वो ये है कि उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हो. मतलब मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग बिफोर इस्लाम, वो तो बहुत ही पाक साफ परफेक्शन सब कुछ है उसमें. वाई? क्योंकि इंडियंस या हिंदूज को ऑप्रेस किया है थ्रू द हिस्ट्री, और जब उनको ऑप्रेस किया जाता है, और जो हिंदू उन्होंने जो कन्फ्रंट किया है द अप्रेसर, उनको फिर ये ताना लेना पड़ा इस तानों के साथ कि ये गंदे हैं, ये बुरे हैं. स्पेशली मुतालिया पाकिस्तान जब आपको पढ़ाते हैं कि हिंदू मतलब, आई आई डोंट वांट, मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहती अपनी जुबान से, लेकिन आपका तासुर ही होता है कि दुनिया में जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं. तो इस पे या आई मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा. कुछ लोग बोलते थे कि भाई मैं तो पता नहीं कालिदासी के साथ में आती थी ना कि आप जादू करते हो, और आप मैं फिर कभी लोगों को डराती भी हूँ कि यस आई हैव अ लॉट ऑफ सो मच पावर, स्पेशली पाकिस्तान में, कि मैं अगर कुरान उल्टा पढ़ लूं और मैं उसके साथ मंत्र पढ़ के ना, तो आप लोग कबूतर बन जाओगे. तो वो मानते हैं. So that is one of the थिंग. और लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं खुद प्रैक्टिस करूं, worship करूं to certain ways, I can be a good guru and to teach about life and to be very calm. इसमें वाकई में सनातन में ये स्पिरिचुअलिटी या आपको जो एक यू नो क्या उसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक पावर आप में आ जाती है विद इन यू. यू नो आप में बहुत ज्यादा आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, आप बहुत कॉन्फिडेंस बन जाते हो. तो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है उसको फिर आप जाहिर सी बात है, आप सनातन को प्रैक्टिस करने के लिए यू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, फिर उससे आप देवी देवता का रूप लेते हो. तो इट इट इज व्हाट इट इज. मुझे तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये चीजें मुझे स्ट्रेंथ देती है. आई होप आई कन्वे माय मैसेज. लेकिन हाँ, मुझे जी। बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है यूट्यूब पे, हुँ, आप वीडियोस हुँ। देखे, लोग गंदा बोलते हैं पूरे इस्लामी दुनिया को, मेरे खिलाफ पूरी इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, लाइक दे आर मेकिंग बिल्डिंग एन आर्मी अगेंस्ट मी. अच्छा, आपने जो जब धर्म चेंज किया, आपने जो सनातन धर्म अपनाया, उसके बाद आपने अपना नाम रखा सरस्वती दासी। कालिदासी तो दूसरी हैं, मेरे मुँह से निकल गया। सरस्वती दासी आपका नया नाम है। इसके पीछे क्या लॉजिक था? क्यों क्यों आपने यही नाम चूज़ किया? नाम चूज़ करने का क्या ये रीज़न था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। Because Saraswati Ma is the embodiment of knowledge, art, peace, music, bravery, courage. वो है उसमें, सरस्वती माँ में थोड़ा सा धीमापन है, यू नो. तो इसीलिए सरस्वती दासी होना पड़ा, बिकॉज आई वर्शिप सरस्वती माँ, और उनसे मैं लेती हूँ अपना जो विजडम है या विजन, उनको मैं आई कॉल अपॉन हर कि मुझे मैंने उनको इस तरह स्वीकार किया अपनी जिंदगी में कि मैं सुबह उठती हूँ, अभी मैंने ए ग्रेड लेना है जस्ट फॉर द सरस्वती माँ. मैंने अगर सेल को पढ़ना है तो मैं उसको देखती हूँ, बिकॉज इट्स, मैं वैल्यू करती हूँ जो मेरा एजुकेशन है, जो मैं कॉलेज जाती हूँ. मतलब मैं अभी सुबह 7, एक दिन में फारिग रहती हूँ. मैं रोजाना 18 घंटे 19 घंटे काम करती हूँ, जिसमें मैं रोजाना 4 घंटे कॉलेज जाती हूँ. तो अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ती हूँ, मैं एनाटॉमी पढ़ती हूँ, तो उसमें मैं जो भी स्ट्रक्चर देखती हूँ ना, उसके उसको
क्या बोलते हैं उसको समझना मैं थ्रू सरस्वती माँ लेंस करती हूँ। और जो मैं नॉट ओनली आई वर्शिप सरस्वती माँ, लेकिन मैं शिव लॉर्ड को भी, शिवा को भी एम्ब्रेस किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो उसके लिए मेरा फिर ये है कि मैं हाउ टू मेडिटेट शिव, जिसका मेरे लिए एक फिजिकल, ताकि टू वॉक फ्रॉम होम टू वर्क एंड टू कीप माई पोस्चर स्ट्रेट, और अपने में जो फिजिकल स्ट्रेंथ मुझ में आती है वो लॉर्ड शिवा से, और जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के लिए कि मेरी बात लोगों को मैं समझा सकूं, यू नो, टू टेक माई मैसेज अक्रॉस, उसको जब मैं मेडिटेट करती हूँ कि मैंने बोलना क्या है, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, हम क्यों इतने ज्यादा भटे हुए हैं, हम क्यों मतलब एक मजहब के पीछे इंसानों को रोकते हैं, तालिबान क्यों बच्चियों को स्कूल से उनको रोका, क्यों हम हर्ट करते हैं, क्यों हम अपने महिलाओं को बुर्के पहनाते हैं। तो वो उस विजडम के लिए आंसर्स, हाउ टू कन्वे माय मैसेज, हाउ टू टेक माय मैसेज अक्रॉस, वो फिर मैं सरस्वती माँ से लेती हूँ। तो आई होप शी इज इट्स ऑफ हेल्प मेरे लिए तो है। आई डोंट नो लोग जो मैं बातें करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फिर मुझ में ये होता है ना कि मैं मुझ में बहुत ज्यादा आई कांट स्टैंड टॉलरेंस, तो मैं टॉलरेट करती हूँ, दैट्स व्हाट आई लिव। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है कि अभी क्यों मतलब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशी वुमेन्स को रेप किया, वजीरिस्तान में रेप कर रहे हैं, यानी एक मर्द उठ के हाउ ही डज दैट, यू नो, बिकॉज मेरे लिए मर्द का जो एक फिगर है, इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं कि मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा भाई मेरे लिए मर्द है। मेरे लिए जो मर्द का एक फिगर है मेरे सामने, दैट्स लॉर्ड शिवा, एंड ही स्ट्रेंथ, ही पावर, ही इज काइंड, ही इज ब्रेव। और जो एक महिला है वो मेरे लिए वही काली माँ है कि अगर वो गुस्से में आ जाए तो वो फिर कुछ नहीं देखती, लाइक फिर उसको जो होता है ना, आप उसके पैरों में लेट के और उससे विनती करके उसको आप स्टॉप कर सकते हो। तो मेरे अंदर इज द काली माँ इज विद मी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माय सरस्वती माँ डोमिनेट हर और शिव डोमिनेट दैट काली माँ। सो मैं काली माँ को जब मतलब मेरा अभी भी दिल चाहता है कि मैं उठूं, मैं इंडिया जाऊं, मैं अपनी आर्मी बिल्ड करूं, मेरा दिल चाहता है मैं अफगानिस्तान जाऊं, वहां से मैं शुरू करूं, यू नो, लाइक झांसी की रानी की तरह। मेरा दिल चाहता है टू गो आउट एंड encourage people to fight in Ukraine, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं, आई हैव टू वेट और लेट द माँ सरस्वती माँ मुझे गाइड करे, बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ, शायद मेरी जो पढ़ाई है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो इन इन द कमिंग फ्यूचर। आप इमेजिन करें, मैं कल क्लास में बैठी थी जब आप मुझे मैसेज कर रही थी, मैं ये बोलती मैं क्यों ये पढ़ रही हूँ, ये चीजें मुझे क्या जरूरत है, इतना ज्यादा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, सेल का जाना, ह्यूमन को पढ़ना, ब्रेन को पढ़ना, फायदा क्या है। वेयर आई कैन गो नाउ, मैं अभी इंडिया में जाऊं, हजारों बच्चे आए प्यारे प्यारे से मेरे इर्द गिर्द हो, मैं बस उनको पढ़ाऊं और उनके लिए एक सरस्वती घर बना के जो मेरे सरस्वती सेवक हो, यू नो, आपको मैं बताऊं कि आप यूट्यूब के जरिए या जूम से आप उनको कुछ पढ़ाएं, काली दासी पढ़ाएं, जो हमारा अपना ग्रुप है। सो व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर इन अमेरिका। तो इस चीज को बैलेंस रखने के लिए सरस्वती माँ और शिव बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज शिव इज माई स्ट्रेंथ। मैं बोलती हूँ कि अगर मैं ये सारे जो मैं मूव करती हूँ, बैलेंस एक्सरसाइजेस अपने करती हूँ। हाँ, मैं आपकी बात को जितना समझ पा रही हूँ उसको मैं एक लाइन में कह देती हूँ कि आप ये जी कहना चाह प्लीज। रही हैं कि शिव से आपको शक्ति मिलती है और सरस्वती से ज्ञान। आई थिंक यही पूरी बात का बिल्कुल, जो आप पूरा कहना चाह रहे हैं ये शक्ति सार और है। स्ट्रेंथ। हाँ, नॉलेज शक्ति मुझे सरस्वती माँ से मिलती है कि बस चुप कर जाओ, आराम से बैठो, म्यूजिक सुनो। बट जी। शिव का वो जो होता है ना, टू गेट अप एंड डू इट, वो उसको अचीव करना। और जब जी। मुझे गुस्सा आता है कि मैं अभी जाऊं, मैं अपना टिकट करके सब लीव एवरीथिंग इन अमेरिका, गो टू इंडिया, अगर कहीं और नहीं, तो वो फिर मुझे दोबारा शिव एंड सरस्वती माँ के मुझे काम करते हैं।
अच्छा, आपने जैसे कहा कि अफ़गानिस्तान भी आप जाके आपको लगता है कि कभी-कभी अफ़गानिस्तान पे से भी शुरुआत करनी चाहिए, जो हालात वहाँ पर हैं। तो आपको जब आपके सामने जैसे आपने जो सिचुएशन रही, अ, क्या आखिरी रास्ता सिर्फ़ इस्लाम छोड़ना ही था? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आप उसी मज़हब में रहकर सुधार करने की कोशिश करती और संघर्ष करती, मेहनत करती, और आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि हम उस पर अपनी मज़हब के अंदर भी हम सुधार की कोशिश कर सकते हैं। क्या हालात रहे? क्या सिचुएशन थी? क्या आखिरी ऑप्शन हाँ, यही था कि आप देखो मुझे जो हुँ, मुझे ये था ना कि मतलब आप जब भी कोई मज़हब फ़ॉलो करते हो, आई टेक योर मैसेज टू माय अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब मैं इस्लाम, मेरे ये है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिवोट होती हूँ। मतलब मैं इस्लाम में भी सुबह उठ के नमाज़ पढ़ती थी। वही चादर लेके हुँ, और नमाज़ पढ़ना, इस तरह रहना, काम रहना। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। इट डिडंट हेल्प मी, इट डिडंट हील्ड मी। और लेकिन मुझे जब योगा आप करते हो ना सुबह उठ के, या आप शिव तंत्र, उसको, उसमें आपका ये होता है ना कि इस्लाम में ये होता है कि खातून जो है ना, वो इस तरह के पर्टिकुलर कपड़े पहने, वो पर्टिकुलर दुपट्टा पहन के करे, नमाज पढ़े। वो जो है ना, मर्द टांगे ज्यादा ना खोले और हाथ ज्यादा ना इकट्ठा करे। लेकिन जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस है, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको मैंने सनातन धर्म में ज्यादा, मतलब आई हैव मोर फ्रीडम इन सनातन धर्म, स्पिरिचुअली और फिजिकली। इसीलिए अगर आप नमाज को पढ़ते हो ना, अगर आप कंपेयर करो, जो एक महिला 5 मिनट में, खैर नमाज तो 5-10 मिनट में खत्म भी हो जाती है, और आप अगर पूरे रात भी, मैं तहज्जुद भी करती थी, तो उसके वो रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन, दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। लेकिन जो आप योगा करते हो ना, कि आप आराम से वार्म अप करते हो, फिर डिफरेंट फेजेस, जिस तरह यहाँ पे मैं हॉट फ्लो, पता नहीं 360 कुछ ज्यादा, मतलब उसमें you can even do yoga when just wearing like a nice yoga trousers, और बाहर कहीं पे भी पहाड़ी पे चढ़ के, like you're more connected with nature, because आप नेचर के साथ एक हो जाते हो। लेकिन नमाज में ये होता है ना कि आप कोशिश करते हो कि, और जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं ना कलिमात, उनका मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज जब आप पढ़ते हो कि उन लोगों को रास्ता दिखा, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कायनात का मालिक है, गुड, यो मालिक यौमिद्दीन, फिर इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, मुझे अच्छा रास्ता दिखा। फिर बोलते हैं ना कि ना उन लोगों का रास्ता जिस पे आपका गजब है, बस उन लोगों का रास्ता जिस पे आपने ईमान इनाम किया है। तो इसीलिए मुझे, आई कांट से, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकती। और मसलन अब मुझे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कि आल नबी पे भी आप दुरूद भेजते हो, इब्राहिम पे भी भेजो, आल इब्राहिम पे दुरूद भेजो। लेकिन फिर मैं क्वेश्चन करती थी, व्हाई नॉट आल आदम? सही है, फिर आले आदम तक जो है ना, चाहे वो इब्राहिमिक फेथ में आप आदम से पीछे नहीं जाते। लेकिन मैं फिर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने तो पढ़ा है जो ह्यूमन एंडोसिम्बायोटिक रेस। थ्योरी में, कि एक प्रोकैरियोटिक जो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, उसमें जो है ना एरोबिक बैक्टीरिया आके यूकैरियोटिक सेल के साथ अटैच होके, उसके साथ सिम्बायोन बना के माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह बनाए, सही है। और उसके साथ फिर बाद में साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्लोरोप्लास्ट करता था, वो मिलके उसने प्लांट को बना के, दैट वाज द फर्स्ट प्लांट जो कि ऑक्सीजन हमें देता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था। तो वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसमें कहीं फिट नहीं आती थी। जो जो मेरा साइंस जर्नी है, जो जिसमें मैं अभी भी कॉलेज शुरू कर रही हूँ, और जो मेरा धर्म है, इट गोज इन पैरेलल। क्योंकि धर्म आपको यू कांट ट्रेस द ह्यूमैनिटी टू आदम अलैहिस्सलाम इन धर्म, यू ट्रेस इट टू बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स अगो। तो जो हमारे कायनात में जो सबसे लाइक धर्म हमारे लिए इसलिए जरूरी है अंबर, कि हम, वी थिंक दैट वी लिव्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हर चीज परफेक्ट है। लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते कि जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन पे, आमू सिविलाइजेशन या बामियान सिविलाइजेशन पे जो स्मार्टनेस रहते थे ना, वी नीड टू गो एंड ट्रेस बैक एंड डिस्कवर
their way of life, क्योंकि वो ज्यादा fulfilling थे और they knew more than what we know, क्योंकि हम जो धर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये उनसे हमारे लिए रह गया है, हमने कुछ नहीं दिया. अगर यू नो लाइक ओके हमने इंटरनेट लेकर आए होंगे, हम मैथ्स लेकर आए होंगे, लेकिन इन सबको कॉस्मोस नॉलेज या वर्ल्डली नॉलेज या लिखना पढ़ना, हाउ स्मार्ट दैट ह्यूमन बीइंग वाज हु डिसाइडेड कि जब हमें अपने मतलब उन्होंने वो किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया ना अपने एग्जिस्टेंस की, और उन डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने जो संस्कृत, उसके लिए लैंग्वेजेस उन्होंने डिस्कवर किए, उन्होंने उनके लिए अल्फाबेट डिस्कवर किए, उन्होंने उनके लिए हिंसे डिस्कवर किए ना, चांद सितारों का. तो we can't even figure those calculation out. So the only way to figure them is to read them, और वो तब हम कर सकते हैं कि जब मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, but you should have the freedom and the limitless opportunity to rediscover yourself and kind of discover what our ancestors were doing. यानी बामियान बुद्ध तराशना, उस इस टेक्नोलॉजी की, आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हाउ दे डिड दैट. आप मिस आइनक में जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, लोगर अफगानिस्तान में, वहां पे जो मूर्तियां जिस लेवल पे वो तराशी गई, उनको स्कल्पचर बनाया गया है, तो क्या उनके पास जो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लाइक हाथ थे, ब्रेन था, बट हाउ दे मैनेज टू fix two and two together and calculate the perfectness of the models that we are looking at today. तो इसीलिए अगर आप इजिप्टोलॉजी एक नॉलेज है, उसमें अगर आप हराम है उसको पढ़ना, then you will never know how smart those people were and how did they live. और आज मैं हैंग ग्लाइडिंग करती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप उड़ नहीं सकते, तो हनुमान जी तो उड़ते थे. तो जब तक हम उस बैलेंस हमारी लाइफ में नहीं होगा, जब तक हम you know to go and discover back what was in the minds that they have right, और उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया लोगों को. और या लोगों को देखो, हमारे इंसेस्टर, उन्होंने जब लिखना पढ़ना, मैं बोलती हूँ ना कि गारे हिरा से शुरू नहीं हुआ था इकरा बिस्म रब्बिक 1400 years. It's just a very small 1400 years, बहुत छोटा वक्त है. हजारों साल पहले उससे इंडस रिवर, इंडस दरिया सिंध के किनारे हमारे पुरख बैठ के उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट करते हैं अपने वजूद को, आवर वेज ऑफ लाइफ, हाउ एडवांस्ड. और उनकी पॉपुलेशन, एक सिटी उन्होंने बनाई बाकायदा, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल. वंस यू स्टडी, तो यू कीप ऑन स्टडिंग, यू कीप ऑन स्टडिंग. आई होप टू decode the codes of ethics, law, यूनिवर्स, कॉस्मोस. और वो तभी हम अनकोड करेंगे जब हम एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेंस से देखेंगे. और मैं इसलिए सनातन धर्म में आई हूँ बिकॉज मेरे पुरखों ने जो मेरे लिए जो मीरास छोड़ा है, वो नॉलेज है, वो कॉस्मो है, वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है. तो इसीलिए मैं जो है ना, मतलब धर्म को मेडिटेट करके अपने एक रास्ता मैंने चुना. अच्छा, आपने जो सनातन धर्म की बात की, तो आपने कैसे ये आपको मोटिवेशन मिली, या किसी ने मोटिवेट किया, या आपने खुद किताबें पढ़ी धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, और उसको दिल से स्वीकार किया? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला डेफिनेटली रहा होगा आपके लिए. आप अफगानिस्तान में जन्मी और पाकिस्तान में पली बड़ी, ऐसे में ये एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा. तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल, हम जो पश्तून होते हैं, पठान हैं, हमारी जिस तरह, अगर आप वो बोले ना, खैर आप अगर जिसने डेन ब्राउन की किताब पढ़ी हो, दा विंची कोड, उसमें वो बोलते हैं ना कि इल्यूमिनाटी, या जो उन्होंने बोला कि अर्थ, गैलीलियो ने कहा कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है, तो उनको इस पे सजाएं मिली है ना. फिर उन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जो वो चुप चुप के जो है ना जाते थे, कनेक्ट होते थे, और वो एक दूसरे को कि आना है, मतलब बेसिकली तो वो एक चर्च होता था, लेकिन उसमें साइंटिस्ट, थिंकर, फिलोसफर आते थे. हमारे साथ जो पश्तून, उन्होंने पिशावर से, अफगानिस्तान से घर वापसी की है, हम एक सीक्रेट सोसाइटी है. उसमें हमारे पास अमेरिका में होते हैं क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और बेसिकली और
اس میں گریس میں ڈاکٹرز ہیں اور مہیلائیں ہیں جو نیو یارک میں رہتی ہیں اور وہ ہم واٹس ایپ گروپ میں ہیں. لیکن میرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا کہ میرا میں یہی ہوتا ہے کہ میں باہر جا کے شور مچاتی ہوں اور وہ لوگ چپ کے رہتے ہیں, دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ, لیکن ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں تو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرح کس وقت سے ہندو بن گئے اور ہم نے کس طریقے, کیونکہ ہم نے کوئی سیرمنی نہیں کی ہے. بٹ وی آل آر ہندو, وی آل ٹاک اباؤٹ, جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا اپنشد کی باتیں کرتے ہیں, سنسکرت لینگویج کی بات کرتے ہیں, کوانٹم فزکس, کوانٹم میکینکس, ان سب کی جو باتیں کرتے ہیں وہ ہر ایک بندے کو اپنا وہ نالج ہوتا ہے. تھیولوجی کا جن کو نالج ہوتا ہے, ہمارے پاس مولوی بھی ہے جو ہے تو مولوی, لیکن وہ اصل میں بھگوت گیتا پڑھتے ہیں اور انہوں نے انڈر گراؤنڈ گھر واپسی کی ہے. اور وہ ہمیشہ ہمیں بولتے ہیں نا کہ ہم تنگ آ گئے, ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکالو, پھر ہم بولتے نہیں چپ کر کے وہی رہو. تو ہمارا اپنا ایک جال کنیکشن ہے بہت بڑا سا, اس میں زیادہ لوگ تو نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے ویڈیو شیئرز کی ہے اور ہم چپ کے باتیں کرتے ہیں. آئی ہوپ واٹس ایپ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ باتیں نہیں, لیکن ہمارے پاس انڈیا سے بہت سارے بھائی ہیں جو ان واٹس ایپ گروپ میں ہیں, ان کو پتا ہے ہمارا کہ کون کون ہے. سب کو میرا پتا ہے, لیکن جو واٹس ایپ گروپ والوں کو, ہمارے جو پاکستان سے, پشاور سے اور افغانستان سے جنہوں نے گھر واپسی کی, پھر اکثر افغانستان اور پشاور سے مجھے آتے ہیں کہ ہم نے گھر واپسی کرانی ہے, ہمیں راستہ بتا دو. لیکن میں جو ہوتی ہوں, میں I can't take risk because it's not کہ آپ کسی کو بالکل, کنورٹ کرو یا میں اور نہیں پتا کون کس انٹینشن سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہاں, اور میں نے ان سب بھائیوں کو یہی بولا ہے, بہنوں کو جو ہمارے ساتھ, جنہوں نے گھر واپسی کی ہے, امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, یوکرین میں بھی رہتے ہیں. آپ امیجن کریں, ایبٹ آباد سے ہمارے ایک سناتن دھرم نے گھر واپسی کی. ہی اونز بزنس, خود ڈاکٹر تھے, بعد میں انہوں نے بزنس اپنا بنایا, تو اس کا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دوں گی. وہ ابھی تھے, پاکستان آئے تھے, تو ان کی اپنی گرل فرینڈ جو تھی, ایک یوکرینین تھی فرسٹ وائف سے, ابھی گرل فرینڈ جوش تھی, وہ اسرائیل گئی. تو میں نے کہا چلو ہم بھی اپنے گھر واپس چلتے ہیں, انڈیا چلتے ہیں. تو اس نے کہا چپ کر کے بیٹھو. تو میں اکثر ان کو بولتی ہوں کہ ہم ایک اچھی, جو ہماری سیکرٹ سوسائٹی ہے, ہم آ جائیں, مطلب اپنا ایک آرگنائزیشن بنائیں, اور تاکہ ہم انڈین بچوں کو سنسکرت پڑھائے, میتھس پڑھائے, سائنس پڑھائے, الجبرا پڑھائے, ہسٹری پڑھائے, اور شیو جو وہ ان کا مسٹ ہوگا. جس طرح آپ صبح آتے ہیں نا اسکول میں ترانہ پڑھتے ہو, یا اپنا ہم بچوں کے لیے شیو ٹینڈمس, اور یہ سرسوتی گھر ان کے لیے بنائے, اور سرسوتی سیوک ہیں ہم. تو اسی لیے I don't want to go into details, لیکن we don't know ہم کب بن گئے, کس طرح بن گئے. ہر یونیک جرنی تھی. پشاور میں مندرز ہوتے تھے, ہمارے ساتھ ایک دو ہندو کمیونٹی ہوتے تھے, یا لاہور میں ہوتے تھے, تو ایک کنیکشن ہو جاتا تھا. کہ کبھی بولتے تھے ہم ہندو ہے, تو we would be shocked کہ آپ کیسے ہندو ہو, you're in Pakistan. لیکن I don't know, it's just so hard کہ کس وقت پہ کیا ہمیں پتہ چلا. لیکن ہمیں بس یہی تھا کہ ریڈنگ بھگوت گیتا ڈائریکٹ us towards دھرما. لیکن جب آپ کو اسلام کا پتہ ہو, تب آپ کو دھرما زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ اسلام میں آپ بولتے ہیں نا کہ موزز نائل ریور کراس کرتا تھا, وہ ریور سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے راستہ دو. سیم وہی جب رام لنکا کراس کرتا ہے, وہ ریور کو ریکویسٹ کرتا ہے to let me pass through, اور ریور اس کی گائیڈنس کرتا ہے. تو اسی لیے جب ہم یہ کنیکٹ کرتے ہیں, it's all the inspiration of Abrahamic religion is from the dharma. تو اسی لیے میرے لیے سمجھنا ایزی تھا, and I'm just kind of practicing it, because جو آپ پریکٹس کرتے ہو وہی آپ کہلاتے ہو. So if I'm practicing Hinduism, تو میں جب اکثر وہ ریڈ سا وہ لگاتی ہوں یہاں پہ نا, تلک, جی رولی بولتے ہیں, تلک لگاتے ہیں جی, it's kind of connecting. مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا, it's very much where the pituitary gland is the master. وہ سیلا ٹرشیشا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا sphenoid bone میں mid brain base of the skull پہ, تو اس کا سائز اور پچوٹری گلینڈ کا
I don't know, it's work in a very strange way for me. जी, अच्छा मैं आपसे अगर कोई पाकिस्तान को लेकर बात करूँ क्योंकि पाकिस्तान में आप वहाँ पर बहुत साल तक रही हैं और जो स्थिति पाकिस्तान में है, तो ऐसे में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखती हैं? क्योंकि अब वो देश टूटने की कगार पर है, वहाँ पर लगातार पॉलिटिकली भी हमने देखा एक chaotic सिचुएशन है। क्या कहना चाहती हैं आप इस पाकिस्तान को लेकर? पाकिस्तान जो है उसमें 4 मुल्क है, उन्होंने एक बलूचिस्तान को अप्रेस किया है, ऑक्युपाई किया है, सिंध को किया है और ऑब्वियसली हम मारगल्ला तक अटक तक समझते हैं कि इट्स केपीके अफगानिस्तान का हिस्सा है. दे नेवर अंडरस्टैंड, दे नेवर एक्सेप्टेड द ड्यूरन लाइन. तो जो इंडिया को या जिस तरीके से भी हो, युद्ध तो खैर आजकल लोग नहीं, बिकॉज देखो ना आजकल दुनिया ने डिप्लोमेटिकली इतना कंट्रोल किया हुआ है कि आप पे सैंक्शन डालना, आपको आइसोलेट करना, आपको डिस्क्रिमिनेट करना. अगर हिंदू कुछ भी अफगानिस्तान के बारे में बोलते हैं फिर उस पे हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या उन पे स्टैंप लगते हैं ना. इसी तरह जिस तरह मुसलमान हम कोई भी काम करते हैं आपको मुर्तिद, मुल्हिद टापे लग जाते हैं ना. अगर आप किसी भी क्रिश्चियन से या यहूद से या हिंदू से बात कर लेते हो फिर आप जल्दी से उनके एजेंट बन जाते हो. तो ये मेंटालिटी दुनिया की भी है. द ओनली सोल्यूशन एंड द फ्यूचर दैट आई सी फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान बनने वाला है, वहां पे सिंधु देश होगा, अफगानिस्तान की जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगी अटक तक, और पंजाब आपके शोल्डर इंडिया पे पड़ जाएगा. और फिर इसकी जो है ना और यूनिटी. पीओके को क्या देखती हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। कश्मीर और पंजाब तो इंडिया का हिस्सा है ना, वो दोनों आपके पास आएंगे. दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर और पंजाब. अब आप उनको पंजाबियों के साथ आपने क्या, जो इंडिया के पंजाबी नहीं, हमारे तो अपने भी सिख पंजाबी भाई है, वो तो हमारे भाई है जो मोदी साहब को पिछले दिनों मिले भी थे, जिन्होंने करजई का वो पहनाया था. जो पाकिस्तान के पंजाबी है अटक से लेकर वाघा बॉर्डर तक, और जो बॉर्डर बनाएंगे सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ, ये वापस आपके पल्ले पड़ेंगे. लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि इंडिया इज वेरी मच ओपन एंड टॉलरेंट, और कश्मीर का भी हिस्सा वही सेटल्ड होगा कि इट विल बी अगेन लाइक अ पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी. तो जिस तरह एक बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है, जब अफगानिस्तान भी अब करंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, सिंध भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है. ये इस्लाम धर्म के नाम पे ये मुल्क नहीं चला रहे. जो हमारा तकदीर है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो इसमें है कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, इस तरह यू नो भारतीय यूनियन बनने जा रहा है. उसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश, बांग्लादेश और इंडिया, जो कि इंडिया जो करंट इंडिया है ये, अलोंग विद कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब, वो ये सारा एक रीजन होगा जिस तरह यूरोपियन यूनियन है. और इनकी हमारी अपनी एक करेंसी होगी. कोई इंडियन, पाकिस्तानी रुपी, अफगानी ये नहीं होगा. एक करेंसी होगी जिस तरह नेटो नेशंस है, और नेटो एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, उसके साथ मतलब अमेरिका, कनाडा, ये है जो नेटो नेशंस है. हम जो है ना भारतीय नेशंस होंगे. तो भारतीय नेशन, भारतीय करेंसी एक, और साथ में ओपन बॉर्डर, क्योंकि ये काम इंडिया डिप्लोमेटिकली कराएगा. और इसके साथ जो थिंकर होंगे ना बैठ के हर जो बलूचिस्तान से जो रीजन को पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली समझते हो, अफगानिस्तान को समझते हो और सिंधु देश को समझते हो, इनके लिए सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि एडवोकेट करे टुवर्ड्स द यूनिटी ऑफ आवर कंट्रीज इनटू वन यूनियन रीजन. फिर दुनिया में 2 यूनियन बनेंगे. ये यूरोपियन यूनियन है यानी नेटो एंड देयर एलाइड, हमारे जो अपना भारतीय यूनियन है, इसी तरह चाइना यूनियन और मिडिल ईस्टर्न यूनियन, और साथ में रशियन यूनियन, ये बनने जा रहा है. फिर इसमें एट द एंड ये 7-6 बड़े बड़े यूनियन होंगे और एक वर्ल्ड यूनियन, वासुदेवा कुटुंबकम. फिर ईयू जो है वर्ल्ड यूनियन, WU.
तो यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स अ यूनियन फॉर द वेस्ट। और भारत का ईस्ट का यूनियन हो, चाइना का अपना यूनियन हो, रशिया का यूनियन हो, मिडिल ईस्ट का यूनियन हो, अफ्रीकन नेशन का अपना यूनियन हो, तो उसमें फिर जो है ना ये 7 यूनियन मिलके दुनिया का एक बड़ा वर्ल्ड यूनियन बनाएंगे। तो इसी तरह दुनिया में करेंसी मार्केट को कंट्रोल करना, लेबर को कंट्रोल करना, ताकि लेबर एक्सप्लॉइट ना हो, ह्यूमन पोटेंशियल एक्सप्लॉइट ना हो, तालिबान और आईसिस जैसे और पाकिस्तानी मदरसों में इस तरह के लोगों का रोकथाम हो। तो इसमें एंड स्टेज इज वर्ल्ड यूनियन। कितने जल्दी ये हम कराएंगे उतना ही जल्दी ये दुनिया के लिए बेहतर है, बट इट हैज टू स्टार्ट विद इंडिया। पहले मैं ज्यादा सोचती थी कि युद्ध हो, लड़ाई हो। आई डोंट थिंक ऑन थिंग्स युद्ध लाइक दैट। बिल्कुल इंडिया जिस तेजी से इकोनॉमिकली बोले या फिर पॉलिटिकली या फिर आप किसी भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो हर तरीके से इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ऐसे में इंडिया तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की वॉर को अफोर्ड नहीं करेगा, ना ही इनिशिएट करना चाहेगा, क्योंकि नहीं, मैं इसीलिए हमारे बोल रही थी पहले ये और वॉर किसी चीज का सोल्यूशन भी नहीं है। वो जरूरी है कि सोल्यूशन निकाला जाए और जिससे किसी भी को भी कोई परेशानी ना हो आम solution लोगों is the way I'm connecting की। with you. सही है ना, हम एक जुबान बोलते हैं। I don't Dialogue is care if you are important. like a still Muslim or if you are like agnostic. I don't care who you are. आप believe करती हो नहीं करती, आप मुसलमान practice करती हो, I don't hate you because Absolutely. धर्म हमारा एक religion is a very personal choice और उसमें मैटर भी नहीं I'm करता not आप क्या taking करती that हैं मैं क्या against करती you. Exactly. तो जो महिलाएं जो हम उठे हैं, like you're not gonna kill me. मैंने अब सारा जो है हमारे साथ काली दासी है, हम उसको नहीं किल कर रहे। तो हम जो ये यूनियन ये दिख रहा है, और इट्स नॉट थ्रू द वॉर, इट्स नॉट द सोल्यूशन। ये इंडिया में जो आप कर रही है, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स करा रहे हैं, दिस इज मोर इट वर्क्स मोर देन जो बिग कॉर्पोरेशन है जो वेस्ट से पैसा लेके और अपने टीवी चैनल चला रहे होते हैं। इसलिए मैं उन चैनल्स पे मुझे बहुत ज्यादा इनवाइट किया जाता है, मैं नहीं जाती। आई डोंट वांट द स्टूपिड पीपल मेक मनी ऑफ मी। लेकिन जो हम जेन्युइनली ऑथेंटिकली जो काम कर रहे हैं, इसीलिए जो जो काम आपने लाइक यू वॉलंटियर टू मेक अ यूट्यूब चैनल, आई वॉलंटियर, मेरे पास अपना काम है लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ लोगों में। जब आप लोगों का, जनता का हिस्सा बन जाते हो, फिर जनता देखती है व्हाट इज गुड फॉर देम। व्हाई वुड Absolutely. Amber be stopped to go to Lahore? Why would you be stopped to go to Peshawar? Why would you be stopped to go to Balochistan? Why would you be stopped to go to Kabul? अंबर, आपको नहीं लगता कि आप जाएं काबुल में बैठ के, काबुल के वजीर अकबर खान तपा में, जो मैं उसका जिक्र इसलिए लाना चाहती थी कि इंडियन टैक्स पेयर ने $1 मिलियन पे करके अफगानिस्तान को 2014 में नेशनल फ्लैग बड़ा सा गिफ्ट किया था, जो ऊपर उनको इनॉग्रेशन की, लोगों को, अफगानियों को साइकोलॉजिकली हील वॉर ट्रामा से जो वो गुजरे थे जिहाद में, इंडिया ने बहुत रोल प्ले किया है। इतना ज्यादा उन्होंने किया है अफगानिस्तान। दिस इज द वे टू डू थिंग्स। लेकिन अभी तालिबानों ने जबरदस्ती, पाकिस्तान ने उनके लिए वो फ्लैग बनाया तालिबानों का, और वो उठा, एंड वी आर ऑल मेकिंग फन ऑफ दिस। एंड ये जो है ना, ये इतिहास जो बना रहा है इंडिया, दिस इज व्हाट आई एम टोटली फॉर। पीस वे, अहिंसा वे पे, एजुकेशन पे, empower yourself with wisdom, empower yourself with confidence, empower yourself with knowledge। क्योंकि knowledge होगा तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। एंड आई डोंट वांट, एक ये होता है ना, एक जो मुझे अल्ताफ भाई जो महाजर एमक्यूएम के हेड है, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, एक दफा मेरी बात हो रही थी कि किसी का मजहब ना छेड़ो और ना अपना छोड़ो। एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल। जो छोड़ता है, अब लाइक आई वॉलंटियर टू डू, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है अंबर, इट्स माय लाइफ। आप जिस, इफ मे बी व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप अपना स्पिरिचुअल गेन थ्रू इस्लाम कर रही है, इट्स योर चॉइस। तो मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं कि आप छोटे से मुद्दे को एक स्कूल लेवल तक की चीज को बढ़ा के फिर पूरा स्टेट और नेशन पे वो थोप देते हो। लाइक काइंडली calm डाउन। जब आपके पास अच्छा बोलने को नहीं होता, when you don't know what to do, जिस वो बात ना करने का व्रत रख लो। उसमें क्या बोलता है उसको, क्या मौन व्रत बोलते हैं, मौन, मौन व्रत। वो रख लो ना।
अब being a Muslim, आप भी शायद कभी कभी मौन व्रत मैंने रख लिया है. अब there is no such thing in Islam like मौन व्रत, लेकिन हमारे ये it's for every human being. तो अब इंडिया में जो प्रॉब्लम मैं दिख रही हूँ ना, यहाँ के जो स्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और स्पेशली जो चीज वायरल होके बाहर आ जाती है फिर हमें अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इंडिया इज आवर ओनली होप. पीपल लाइक यू इन इंडिया इज आवर होप. यू आर ऑल्सो अ डॉटर ऑफ ऑल भारत. तो आज आप अपना बच्चा जो एजुकेट करेगी अंबर, कल को वो उन तालिबान के बच्चों को जो जाहिल है उनको अच्छा सिखाएंगे, तलवार पे नहीं, बंदूक पे नहीं. बिल्कुल। डायलॉग और एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिससे हम सारी चीज़ों का समाधान, जंग भी हो जाए फिर उसके बाद भी आपको टेबल पे आकर डायलॉग ही करना पड़ता है सारी चीज़ों को, या फिर कोई समझौता करना पड़ता है, तब भी आपको जंग के बाद यूक्रेन में आप देख लीजिए जो हालात बने हुए, उसके बावजूद भी बातचीत करने से ही हालातों को करके बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और अब मैंने आपका बहुत टाइम लिया। सरस्वती, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और चर्चा में Thank जुड़ने you के for लिए। letting me into your channel. Jai Hind, Vande Mataram, जय Bharat हिंद, वंदे Mataram. मातरम, भारत माता की जय। Thank you. थैंक यू।